So then let me now ask, what I will do is I'll ask 2-3 people to ask the question and then you can answer so that we save some time. Mr. Vinayak Chatterjee, Ganesh, Natarajan and Dhruv. Vinayak, yeah. Kejriwal ji, namaskar. My name is Vinayak Chatterjee. I head CII's Infrastructure Council. Or I have a question for you on that sector. You have very strong thoughts on 2 areas that have deep impact on the future of the Indian infrastructure market, not just in Delhi, but the Indian infrastructure market. One of them is your very strong thoughts on electricity distribution, and second is your strong thoughts on gas pricing. So I just thought that we would use the opportunity of this interaction to actually understand your mind on these subjects. That's it, sir. Okay. Ganesh? Yeah. Arvindji, this is Ganesh here. Just first of all, we'd like to congratulate you because many of us have great admiration for your sincerity and I think what you're bringing to the nation. And of course, in the IIT community, we're all proud of a person called Arvind Kejriwal. But one question, sir, that like many IITians, I think you're also changing your job too fast. So can we request that, sir, that whatever you take up as your next innings, can you show us first-class governance for first-class citizens? Dhruv. Thank you. Mr. Kejriwal, thank you very much for having joined us here today. I have great respect for your elocution on corruption. My question is on agriculture. As a country, we have a dire need for another green, yellow, white revolution. Because unless we can raise the productivity levels to a vast extent, our food prices will not be contained. We will have a great problem, not just in inflation and probably law and order. Now, while accepting your point on corruption, I think one has to go beyond this in the agricultural sector. Do you have any thoughts on this subject, sir? So Mr. Vinayak said electricity distribution and gas prices. Sir, all that we have said is that the electricity companies should be audited. We have not said anything else. And there's no reason why they should not be audited. And we said that once the audit report comes out, then on the basis of the findings, the electricity prices should be fixed. We have talked about cross subsidies, that the lower segment should be subsidized and the upper segment may need to, which has been going on for ages. So I don't think, we have never said, I completely agree with you, कि जब सरकार चलाती थी बिजली कंपनियों को, इतना करप्शन था, जब भी सरकार चलाने की कोशिश करती है तो बहुत करप्शन होता है. That's not a good model. लेकिन जब जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, सो द गवर्नमेंट का काम कम से कम इतना तो था कि उसको रेगुलेट करे ठीक से, उसके ऊपर नज़र रखे ठीक से, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक. इट शुड नॉट बी अ केस ऑफ कंप्लीट लेसेस फेयर वेयर यू जस्ट कंप्लीटली गिव अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये काम तो सरकार को करना पड़ेगा, विच द गवर्नमेंट डिड नॉट डू. सो हम केवल इतना कह रहे थे, मैंने कभी भी ये नहीं कहा, हमने जब ऑडिट के लिए बोला और इन्होंने रिफ्यूज़ किया, फिर इन्होंने कहा कि 10 घंटे का पावर कट लगेगा. दे कांट से दैट. उनकी जिम्मेदारी है. लाइसेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ लाइसेंस, उसमें लिखा है कि पावर कट नहीं लगेगा. उनकी जिम्मेदारी है फंड्स को मैनेज करना. 2 कंपनियां हैं दिल्ली के अंदर, लेट्स नॉट नेम देम. वन ऑफ द कंपनीज इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, द अदर कंपनी इज हैविंग अ प्रॉब्लम. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर. तो अगर हम ऑडिट कह रहे हैं, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन सामने, फिर भी हम ये कह रहे थे कि अगर वो नहीं करती तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके हम दिल्ली में दूसरी प्राइवेट कंपनी ले आएंगे जो ईमानदारी से बिजनेस करे, ईमानदारी से अपने प्रॉफिट ले और जनता की सेवा करे. सो दैट इज आवर पोजीशन. सेकंड इज गैस प्राइसेस. सर अब आप बताइए, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. हमारे देश के कुएं हैं, वो कुएं हमने XYZ को दिए, हमने कहा जी इसमें से गैस निकाल के दे देना. मेरे कुएं हैं, इनके कुएं हैं, हमारे कुएं हैं. डॉक्यूमेंट ये दिखाते हैं कि वहाँ से गैस निकालने का दाम $1 से भी कम है. फॉर वेरियस रीजंस, पहले उन्होंने कहा $2.5 देंगे पर यूनिट, फिर उन्होंने कहा $4 करवा लिए उन्होंने कि $4 देंगे, फिर उन्होंने गैस प्रोडक्शन बंद कर दी, कुएं की लाइट ऑफ कर दी.
तो सरकार घबरा गई या जानबूझ के घबरा गई, मिले हुए थे दोनों, तो वो $8 कर दी। $1 की चीज़ आप $8 पे दे रहे हो। फिर एक इन्होंने कमेटी बनाई, तो कमेटी ने कहा जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसके हिसाब से देंगे। अरे मेरा कुआं है, ये यही हो गया, मेरा खेत था सर, उस खेत के अंदर मैंने किसी को कहा भाई खेती कर दिया कर, थोड़े दिन में वो कहता है जी ये मैंने जो आलू उगाए हैं ये तो मैं तो आपको मार्केट प्राइस पे दूंगा। अरे मेरा खेत है, मैं तेरे को सब कुछ, मेरी ज़मीन है, मेरा खेत है, मार्केट प्राइस पे क्यों लूँगा मैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस सम प्रॉफिट्स, कॉस्ट प्लस बेसिस पे लेना चाहिए ना, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे क्यों लेना चाहिए। सो हमारा ये कहना है कि जो हमने कुएँ दिए वो हमारे कुएँ हैं सर, तो हम कॉस्ट प्लस बेसिस पे देंगे कॉस्ट, तो वो ज़्यादा बेहतर है। गणेश जी ने कहा कि मुझे अपना काम जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। सर मजबूरी है काम चल नहीं रहा। पहले IIT किया, इंजीनियरिंग किया, फिर लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, सिविल सर्विसेज में एंटर किया, इनकम टैक्स में काम करते करते लगा कि नहीं अंदर रह के तो काम नहीं चलेगा, बाहर आना पड़ेगा। देन आई बिकेम एन एक्टिविस्ट। फिर एक्टिविस्ट रहते रहते धीरे धीरे पता चला कि देन वी गॉट इनटू लोकपाल मूवमेंट, उसके बाद अब पॉलिटिक्स में आए हैं, एंड पॉलिटिक्स इज़ वेरी रफ एंड टफ। तो एक्चुअली मैं आपको जो आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट, अभी व्हेन आई बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स केम टू मी एंड ही सेड, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि समर में दिक्कत हो सकती है, आप पूरा अपना प्लान बनाइए समर तक का एंड प्रेजेंट दैट प्लान टू मी। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा सर गवर्नेंस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, दैट इज़ अ लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपने इस देश की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है, आपने इस देश की राजनीति साफ करनी शुरू की है, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। गवर्नेंस तो हम कर लेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गवर्नेंस सर इसलिए नहीं हो रही, गवर्नेंस इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीति खराब है। अगर राजनीति हम लोगों ने ठीक कर ली, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी सर। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज सड़कें खराब है, बिजली खराब है, पानी खराब है, सब कुछ खराब है। आज आप सब लोग भी इसलिए दुखी हो क्योंकि राजनीति खराब है। अगर राजनीति ठीक हो गई, आप भी धंधा अच्छा कर पाओगे सर। सर एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई कंप्लीटली कंसीड, और उसमें कई सारे डायमेंशंस हैं सर। सबसे बड़ा डायमेंशन सर एग्रीकल्चर प्राइसिंग का है, द काइंड ऑफ प्राइसेस दैट वी आर गिविंग, और जो इतने सारे कंट्रोल्स हमने एक किसान के ऊपर रखे हुए हैं, इन कंट्रोल्स को भी हटाना पड़ेगा। एक किसान को मंडी में ही जाके बेच सकता है, बाहर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी में ही क्यों बेच सकता है, दूसरे स्टेट्स में ही क्यों नहीं बेच सकता, अपने स्टेट में ही क्यों जितने कंट्रोल्स हमने एक छोटे से किसान पे लगा रखे हैं, जिस कंट्रोल से आप लोग दुखी हो ना सारे, उसी सारे कंट्रोल से वो भी दुखी है। आई थिंक उसको वो करने की ज़रूरत है, डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सरकार को उसकी सर से उतरने की ज़रूरत है। एंड जो प्राइसेस उसको हम दे रहे हैं, वो प्राइसेस मतलब जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा वो गेहूँ का था या किसका था, चावल का था। हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 1580 रुपीज पर क्विंटल एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज 1250। आप उसको कॉस्ट भी नहीं दे रहे हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो वो कैसे जिएगा? ऑब्वियसली दे विल बी अ प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग, स्वामीनाथन रिपोर्ट सेज दैट वी शुड गिव देम कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट्स, अगर आप उसको ईमानदारी का प्रॉफिट देना चालू कर दो, but there are many other complicated things. I think we need to do many more things in agriculture. Maybe if you have ideas, I also want to tell you, मेरी टेक्निकल नॉलेज बड़ी कम है सर, तो अगर आपके कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ गिव अस आइडियाज़ एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू। Okay. Subodh, Arun Bharatram, and Ajit Gulabchand. थैंक यू प्रेसिडेंट। केजरीवाल जी, आपने जो ईमानदार राजनीति की बात कही, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं और सहमत भी। आपने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने से पहले हमको ये देखना होगा कि उसका मूल कारण, उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज में अगर इसमें नीयत खराब है तो उसको तो आपने कहा जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करके ही हम टैकल कर सकते हैं, पर जहां ज़रूरत है और ज़रूरत के अगेंस्ट उसको प्रोविज़न नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो राजनीति है, उसको राजनीति को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है।
उसकी वजह से रूट कॉज एक हो सकता है, और भी होंगे, मैं उसके बात नहीं कर रहा, पर अगर हम उसको टैकल नहीं करेंगे, जब तक इस देश की राजनीति और पॉलिटिकल एक्टिविटी और डेमोक्रेसी के लिए प्रावधान नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम वहीं रहेगी। और इस प्रावधान के लिए गवर्नमेंट का, एंड इसमें इलेक्शन भी इंक्लूडेड है, मैं इलेक्शन से ज़्यादा बात कर रहा हूं, और उसके लिए स्टेट फंडिंग हो या टैक्स पेयर फंड करें। सीआईआई ने पिछले साल एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी डॉक्यूमेंट तैयार किया था, उसमें हमने सजेशन भी दिया था कि हाउ पॉलिटिकल फंडिंग कैन बी ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल। हम ये कह के खुश हो जाते हैं कि अब तो चेक से पैसा देंगे, पर उसके अलावा और क्या होता है, और चेक से भी किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, और उसका जो इन्फ्लुएंस फिर इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी रोकना होगा। तो इसलिए व्हाट आई से, इट्स नॉट ओनली ट्रांसपेरेंट, it has to be equitable on behalf of the politicians, political parties, political leaders, and also on the side of the giver, whether it's an individual or corporates. And my request is, your election manifesto must give a clear direction how you would like to tackle removing Bhashtachar from the country. Kejriwal ji, thank you for your very candid and very clear message that you have given to industry, particularly with respect to your views on what you believe is the role of industry and what is the role of the government. You made a mention in your speech that we have a tremendous amount of litigation that goes on in the country. You yourself have experienced this as being an income tax commissioner. May I suggest, since you're now entering the national field, not just the Delhi state field, but the national field, that take up first the income tax issue and say that we will stop litigation beyond a point. If there is a view taken by a tribunal or maybe one level higher than that which says that the individual taxpayer is correct, then why must it go to the High Court? Why must it go to the Supreme Court? You are blocking up those courts unnecessarily, and ultimately in 80 to 90% of the cases, it is the individual taxpayer who actually wins the case. So start at that and then go to other areas where litigation is taking place. So I believe that 80 to 90% of litigation is between the government and individuals. So if you can make a start on that, it would make a huge difference to the state of our judicial system also. Notwithstanding the speech you gave in which you discussed the role of business, your book, Swaraj, has not enough place for business, and the comments of your colleague Prashant Bhushan have been definitely anti-business, very Marxist in its view. So it's a bit confusing that these two seem to reside in the same party. Maybe we would like once again a clarification, because you gave a speech that was quite contrary to his views. Was it suited for the audience? So that we are so clear कि ये न हो कि वो हंस के मिले हमको हम प्यार समझ बैठे. सर उन्होंने क्या कहा है प्रशांत जी ने? What has he said? What statement has he made, Prashant Bhushan? It's a very anti-business statement. Several commentaries of his. There should be only state government, state-owned enterprises. There should be no private sector. Or if it is there, it must not be allowed to be in very major areas. Several times. Not once, over the last several years. And now he's known more, so it's a little more public. Okay. Can I respond? State funding of elections. I completely agree, sir. We just experienced, हमारी ज़िंदगी का पहला चुनाव था अभी, और हम लोग भी पैसा मांगने के लिए गए थे जगह जगह, और यहीं से करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन शुरू होता है कि पहला चुनाव मांगने के लिए पैसा मांगते हैं और फिर जीतने के बाद उसको रिकवर करते हैं, तो फिर सोचते हैं जब ये रिकवर किया तो थोड़ा सा और ले लो, अपने लिए भी ले लो, अगले चुनाव के लिए भी ले लो, अगले 4 चुनाव के लिए भी ले लो, फिर बच्चों के लिए भी ले लो. यहीं से शुरू होता है सर. आई कम्प्लीटली एग्री.
इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. इसका जवाब बहुत सिंपल नहीं है. इसके वो दिए गए हैं द सॉल्यूशंस. वन सॉल्यूशन इज द स्टेट फंडिंग ऑफ पार्टीज. इट्स नॉट सो सिंपल सर. अगर स्टेट फंड कर भी देगा, आई हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशंस विद मिस्टर कुरैशी एंड ही सेड कि अगर स्टेट फंडिंग भी कर दी तो ये पार्टियां स्टेट से भी ले लेंगी और काला पैसा भी लगाएंगी. दैट डज नॉट इंश्योर कि काले पैसे का रोल कम हो जाएगा. इट विल ओनली मीन दैट स्टेट का बजट बढ़ जाएगा. सो दैट्स नॉट रियली अ सोल्यूशन. नंबर 2 इज़ कि ट्रांसपेरेंट चेक बेस्ड सिस्टम करना चाहिए. वो तो आज भी है, करना चाहिए. चेक से पैसे लेने चाहिए. और आम आदमी पार्टी तो एक स्टेप आगे गई है कि जितना हमारा लिस्ट ऑफ डोनर्स है वो सारी हमारी वेबसाइट के ऊपर है. आप एक कोई हमें 1 रुपया भी देता है तो वो भी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है. आज कांग्रेस को शायद 2300 करोड़ रुपीस मिले थे पिछले 5 साल में. बीजेपी को 800 करोड़ रुपए मिले थे. और इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है जो कहता है कि अगर आपको किसी से 20,000 रुपये कम मिले हैं तो आपको उस आदमी का नाम एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें 90% से ज़्यादा 20,000 से कम मिले हैं. तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर 90% से ज़्यादा 20,000 से कम मिले होते तो दे शुड हैव हैड 3 और 4 लाख सच डोनर्स. तो हमारे में से कोई तो देता इनको 20,000 रुपये. हमारे में से तो किसी ने दिए. मैंने कई लोगों से पूछा, कांग्रेस को पैसे दिए? कहता ना. बीजेपी को पैसे दिए? कहता ना. तो ये हैं कौन लोग? तो इसका सारा का सारा बेनामी चोरी का पैसा है. किसी ना किसी से पैसे, 2 नंबर का पैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है. सो आई थिंक वी हैव मेड अ बिगनिंग कि हमने सारे लिस्ट ऑफ डोनर्स वेबसाइट पे डाल दिए. इसकी बड़ी दिक्कत है सर. जब भी हम किसी बिजनेसमैन से पैसे लेने गए तो कहते हैं अरविंद जी आपका काम बहुत अच्छा है, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन अगर मेरा नाम वेबसाइट पे आ गया तो पता नहीं आपकी सरकार तो बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस वाले तो मेरा बिजनेस धंधा बंद कर देंगे. तो बहुत सारे बिजनेसमैन मेरे को कहते थे कि हमसे पैसा ले लो, हमारा नाम वेबसाइट पे नहीं आना चाहिए. इट्स अ जेन्युइन कंसर्न. हमें समझनी पड़ेगी. सबको बिजनेस करना है, अल्टीमेटली धंधा तो करना है ना सर. धंधा बंद हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये दोनों सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम्स हैं. एंड इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन बट इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम कि अगर हम फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को हम ट्रांसपेरेंट और ईमानदार नहीं बनाएंगे तो यहीं से सारी गंगा निकलनी शुरू होती है. तो यू सेड दैट देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट CII हैज़ प्रिपेयर्ड. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव अ कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. वी विल स्टडी दैट डॉक्यूमेंट एंड वी विल वर्क ऑन इट. आपने ये भी कहा कि करप्शन को रिड्यूस करने के क्या क्या वो हो सकते हैं. सर करप्शन का कोई एक सेट फार्मूला नहीं है उसको कम करने का. कई सारे फ्रंट्स पे काम करने पड़ेंगे. पर 3-4 सुझाव जैसे हमारे मन में हैं. एक तो यू नीड टू क्रिएट अ डेटरेंस ऑन करप्शन. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ. आफ्टर टेकिंग ओवर हमारे दिल्ली जल बोर्ड में बहुत करप्शन है. दिल्ली के अंदर एक केस आया जिसमें पता चला कि CBI ने एक केस के अंदर 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है. नाउ इफ आई वांटेड आई नीड नॉट हैव डन एनीथिंग. हम लोगों ने 17 के 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया. इतना स्ट्रांग मैसेज नीचे तक चला गया. उसके बाद उनकी यूनियन आई, उनके वो आए. मैं कहा देखो अगर आप ईमानदारी से काम करोगे यू विल फाइंड मी स्टैंडिंग लाइक अ रॉक बिहाइंड यू. मैं तुमको किसी भी हद तक जाके सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर बेईमानी करोगे तो मैं फिर आई विल बी द लास्ट पर्सन. और बेईमानी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. इन 17 लोगों को तो मैं वापस नहीं लेने वाला. सर नीचे तक मैसेज चला गया कि अब भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए. और अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आने वाली है जो मुझे पता चला है कि जल बोर्ड से करप्शन बहुत हद तक कम हो गया है. आई थिंक द डेटरेंस हैज़ टू बी क्रिएटेड दैट देयर विल बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ करप्शन. अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सज़ा मिलेगी और जल्दी सज़ा मिलेगी. देखिए सर उसके बाद कैसे करप्शन कम. सो डेटरेंस इज इंपॉर्टेंट सर. आई थिंक वी नीड टू चेंज द सिस्टम्स. पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी विच एनकरेज. जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स किए हुए हैं इन लोगों ने. ऐसे ऐसे किए हुए हैं कि एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन है कि एक बिजनेसमैन कहता है जी मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, मेरे से टैक्स ले लो, मुझे धंधा करने दो, मुझे काम करने दो, लेकिन काम नहीं करने देते. तुमने ये फॉर्म नहीं भरा, तुमने ये कॉलम छोड़ दिया, तुमने ये नहीं किया. अल्टीमेटली वो कहता है यार पैसे ले जाओ मेरे से और मेरे को काम करने दो मेरे को. आई थिंक वी नीड टू रिविजिट आवर सिस्टम्स. वी नीड टू यूज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी यूज़ करके जैसे रेलवे के अंदर कई जगह हम लोगों ने कंपटीशन करके टेक्नोलॉजी यूज़ करके. एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर जुडिशियल सिस्टम्स कि अगर कोई होता है तो जुडिशरी को एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है. आई फुली एग्री विद यू सर. आपने तो इनकम टैक्स की बात कही है दैट देयर आर सेवरल केसेस लॉक्ड इन द कोर्ट्स, बट दैट नीड्स टू बी डन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. कि जितने अननेसेसरी कोर्ट्स और लिटिगेशन इनके अंदर है वो सारे निकालने की ज़रूरत है.
In large number of cases, the government is a litigant in the courts. I think the government needs to revisit all these cases. और सर वो स्वराज के अंदर आई कंप्लीटली एग्री कि इकोनॉमिक पार्ट नहीं लिखा हुआ, पर वो केवल पॉलिटिकल विजन के बारे में है सर, उसमें इकोनॉमी वाला मिसिंग है. आई फुली एग्री विद यू. उसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं लिखा हुआ बिजनेस के बारे में, लेकिन इट ओनली डिफाइंस द पॉलिटिकल विजन दैट वी हैव फॉर द कंट्री, और उसमें इकोनॉमिक्स का लिखा नहीं. और की किताब की जरूरत है. हाँ ज़रूरत है सर, एक और आपके साथ बैठ के लिखेंगे सर वो किताब. आप ही लोगों से सीखेंगे. प्रशांत भूषण जी ने एक जगह बोला था, बैंगलोर की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था स्टेट ओन्ड कर देंगे, ये कर देंगे. द पार्टी कंप्लीटली डिसएग्रीज विद दैट. आई एम सेइंग विद ऑल अथॉरिटी, एंड व्हाट आई हैव सेड टुडे इज द पार्टीज विजन एंड द पार्टीज स्टेटमेंट. Thank you. Sunil, then Ajay Sriram is here. You want to say something? Okay. Girish, you want to say something now? Oh, you're going to ask question. Okay. Sunil, Ajay, and Ashank. Yeah. अरविंद जी, आपने एक बात बोली कि गवर्नमेंट शुड डू गवर्नेंस एंड बिजनेस शुड डू बिजनेस. तो क्या आप इस कंट्री में जो प्राइवेटाइज नहीं हुई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको प्राइवेटाइज करने के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि अभी तक प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट की तरफ से ये बात हुई है कि डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स प्रॉपर वे में नीड प्राइवेटाइजेशन. और एक चीज़ और थी रिगार्डिंग द रूट कॉज ऑफ करप्शन. नाउ ब्यूरोक्रेसी में पीछे 6th पे कमीशन हुई, सैलरीज बढ़ी, काफ़ी हद तक वो प्राइवेट सेक्टर के बराबर आ गई. अब ये देखिए कि किसी भी कंपनी में एक CEO है, CFO है, उनकी आज करोड़ों रुपए सैलरी होती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीनियर लीडर्स ऑफ द कंट्री लाइक CEO और CFO ऑफ ए कंट्री, शुड द सैलरीज नॉट बी रिव्यूड फॉर पॉलिटिकल पोजीशंस? कितनी होनी चाहिए सर? प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होनी चाहिए कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा उसके बाद? सर ये एक डिबेट की बात है. अगर इसमें वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि वो आज काफ़ी है या बढ़नी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट इससे फ़र्क पड़ेगा, बट शायद ऑनेस्ट लोग ज़्यादा आना चाहेंगे पॉलिटिक्स में, सो दैट देयर इज ए बिकम अ प्रोफेशन. सर तीसरा एक सेक्टर, आपने जैसे कहा कि प्राइवेटाइज होना चाहिए बिजनेस, तो पावर का जैसे आपका काफ़ी इंटरेस्ट है पावर सेक्टर में, कोल इज ए मेजर प्रॉब्लम टुडे. व्हाट वुड बी इन केस यू कम इनटू द गवर्नमेंट और अनफॉर्चुनेटली इन द ऑपोजिशन, व्हाट वुड बी योर पोजीशन ऑन द कोल प्राइवेटाइजेशन और कंपटीशन? Thank you, Chris. Mr. Kejriwal, I have 2 points I'd like to raise with you. One, just to share with you that CII, in their election thoughts, which they've shared with political parties, one of the major focus areas, besides, of course, looking at agriculture, manufacturing, and services, all 3 sectors, but one of the focus areas we've talked about is how to create jobs. Our feeling and our studies, and it's a national study, shows that India will require 10 million jobs a year for the next 10 years. Just to share with you, if you see that board at the back, CIS, besides business development, affirmative action, we are doing very actively working on, again, to provide jobs. Competitiveness, we are working on. Small micro industries, we are looking at the knowledge initiatives, we are looking at skill development as a very major way. CIS is doing that. But what is the economic policy for your government of how to provide these jobs in all segments? It's not necessarily only in the highly educated segment, but it's required everywhere, including transport management and even people who are lifting goods and moving them around. The requirement of job creation is a very important focus which is needed for the country. Otherwise, we are likely to have social unrest, actually, without having jobs. So what is your policy, your party's policy? And second, if I may ask, which is really Delhi-centric, many of us are from Delhi over here, the pollution level in Delhi is so bad. It's among the worst polluted cities in the world. We have today maybe 3,000-4,000 trucks which drive through Delhi between north, south, east, west, which not only pollute, but accidents-wise, road damage-wise, and 20 other things they create a negative situation. What is your thinking of how we can control this? There was supposed to be the Eastern
expressway, the Western Peripheral Expressway, etc. Supreme Court has also come down on it, but nothing has happened. What is your feeling and what do you think your party could do about it? Thank you. Asha, yeah. I hope you don't mind calling you Arvind. Of course, sir. That's why Certainly, certainly. we know you for last many years Sure, in sure, certainly. IIT circles. I have read the book Swaraj, and मैं सहमत हूँ आपका डिसेंट्रलाइजेशन का जो आइडिया है. आई एम कंप्लीटली एग्रीइंग. हाउएवर, ये जो पेंडुलम है वो सेंट्रलाइजेशन का तो चेंज होना ज़रूरी है, मगर आई हैव सीन द इल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज आई हैव ग्रोन इन अ रूरल एरिया एंड हाउ करप्ट पंचायत्स एंड अदर ऑफिसेस कैन बी टू एक्सट्रैक्ट द मनी. तो मेरा ऐसा एक व्यू है कि आप जो स्वराज में बोल रहे हैं इसमें कि कंप्लीटली विल डिसेंट्रलाइज वुड बी एज बैड एज सेंट्रलाइजेशन. वो भी एक अनार्की हो सकती है. तो ऐसा आपका प्लान है कि आप बैलेंस सोच रहे कि जहाँ सेंट्रलाइजेशन है वहाँ सेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, जहाँ डिसेंट्रलाइज करना है वहाँ डिसेंट्रलाइज कीजिए. ऐसी मुझे बात लगी नहीं वो बुक में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इज़ दैट योर पॉलिसी, बिकॉज दैट मे टर्न इन टू एनार्की. एंड the feeling that Ajit ji also said, I also got that it was not business friendly, or at least it was not mentioned. So I just reiterating that. Thanks. सर, आपने बिजली की कंपनियों का पूछा, प्राइवेटाइजेशन, कोल का प्राइवेटाइजेशन एक्सेट्रा. सर, प्राइवेटाइजेशन को एक आइडियोलॉजी और एक धर्म की तरह हम लोग कई बार सोच लेते हैं. मेरा अपना ये मानना है, सरकार करप्ट है, सरकार इनएफिशिएंट है, तो कहा जाता है देयरफॉर देयर शुड बी प्राइवेटाइजेशन. आई थिंक दैट लॉजिक, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द टू. सरकार करप्ट है अगर, सरकार इनएफिशिएंट है अगर, तो प्राइवेट सेक्टर भी काम नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी लूटेगा. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को फिर गवर्न कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर को गेम्स, रूल्स ऑफ द गेम के हिसाब से चलाएगा कौन. तो मुझे लगता है कि द इशू इज गवर्नेंस विच कैनॉट बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट एनी मोर. आज तक हमारे देश के अंदर गवर्नेंस को वी वुड ब्रश अंडर द कारपेट. सरकार इनएफिशिएंट है, सरकार करप्ट है. जैसे कोल का ले लेते हैं सर, कोल इंडिया लिमिटेड कोल निकाला करता था, इतना भ्रष्ट था जिससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई है नहीं देश के अंदर. फिर हमने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया और हमने देख लिया आज प्राइवेटाइजेशन का क्या हाल हुआ 6 साल के अंदर. मतलब अपने चाचे भतीजे सारे अपनी पार्टी के लोगों को दे दिया, बीजेपी वालों को भी दे दिया, कांग्रेस वालों को भी दे दिया. सो द इशू इज़ गवर्नेंस. अगर देश की गवर्नेंस ठीक हो जाए, अगर देश की गवर्नेंस ईमानदार और एफिशिएंट हो जाए, तो वेदर अ पर्टिकुलर यूटिलिटी इज़ इन प्राइवेट सेक्टर और अ गवर्नमेंट सेक्टर, इट विल वर्क. और अगर गवर्नेंस खराब है तो वेदर अ यूटिलिटी इज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इट विल नॉट वर्क. सो द इशू, इन दोनों को डीलिंक करने की ज़रूरत है. पहली चीज़ तो ये कि हमें गवर्नेंस तो सर सुधारनी पड़ेगी इस देश के अंदर. केवल प्राइवेटाइजेशन कर देने से सारी चीज़ें भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगी, ये नहीं होने वाला. पर कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है. देयर आई कंप्लीटली एग्री विद यू. सो वी डीलिंक द टू. जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन पॉसिबल है तुरंत प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए सर. लेकिन जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक नेचर है वहाँ पे सर प्राइवेट भी दिक्कत कर सकता है. उसके लिए हमें कोई मॉडल सोचने पड़ेंगे. अगर मोनोपोली है और उस मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर को आप कहोगे एक रेगुलेटर होगा और वो रेगुलेटर दाम तय करेगा, तो वो रेगुलेटर में बैठे हुए कोई सर संत महात्मा थोड़ी हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी पैसे लेने शुरू कर देते हैं. एंड इट इज़ सो ईजी टू, नहीं ऐसा गलत तो नहीं कह रहा, होता है ऐसे. तो सर इसको मॉडल को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा. मेरे पास इमीडिएटली समाधान नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जैसे आपने कहा, तो अभी इन दिनों में हम डायलॉग कर रहे थे कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव, मुझे कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट्स ने आके बताया दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव कंपटीशन इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऑल्सो. एंड कई कंट्रीज़ के अंदर है कंपटीशन. we need to explore all these issues. So we are not against privatization or in electricity sector. हम उसके खिलाफ नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि उसका मॉडल क्या होगा. पहली चीज़ तो गवर्नेंस को सर ठीक करनी पड़ेगी. अगर गवर्नेंस ठीक नहीं हुई तो जिसको मर्जी आप दे दीजिए, फिर वो भी लूटेगा इस देश को. तो गवर्नेंस को भी ठीक करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैसे कंपटीशन को किया जाए वो हमें देखना पड़ेगा.
सैलरीज का आपने कहा सर, ये वाला एक डिबेट हम इनकम टैक्स में बड़ा किया करते थे। एक होती है नीड बेस्ड करप्शन, एक होती है ग्रीड बेस्ड करप्शन। नीड बेस्ड करप्शन की मेरा काम ही नहीं चल रहा, मेरी सैलरी बड़ी लो है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाता मैं, उतना तक तो आदमी जस्टिफाई करता है कि मैं, तो हमारे जैसे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनकी तनख्वाह कम थी, तो ये उन दिनों में, मैं तो 97-98 में इनकम टैक्स में था, तो बात होती थी भाई अगर इनकी तनख्वाह 15,000 कर दो, 20,000 कर दो, तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो मन में आता था भाई इनको 15,000 तक की करप्शन ही करनी चाहिए, फिर महीने में उससे ज़्यादा की करप्शन नहीं करनी चाहिए, जितना काम चल जाए उतने की। सर मुझे लगता है करप्शन जो है वो लालच से आती है, आदमी का लालच होता है, उसको आप जितनी मर्जी सैलरी दे दो सर। अब मैं नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, कई मंत्री ऐसे बैठे हैं, आप उनको 2 करोड़ की सैलरी दे दो, 3 करोड़ की सैलरी दे दो, वो एक एक ठेके में 500-500 करोड़ कमाते हैं सर, उनका सैलरी से तो पेट नहीं भरने वाला। आज भी सर जो सैलरी इनको मंत्रियों को दी जाती है वो बहुत है, इतने बड़े बड़े बंगले मिलते हैं इनको। आप कॉस्ट टू द कंपनी अगर निकालो, आई थिंक यू हायर, व्हेन यू हायर पीपल यू टॉक अबाउट कॉस्ट टू द कंपनी, आप ये कॉस्ट टू द कंपनी निकालो, इनका मतलब पता नहीं, इट विल रन इनटू सेवरल करोर्स ऑफ रुपीज़। उनको इतने बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती है, इतने नौकर चाकर मिलते हैं, और फिर भी उनका लालच पूरा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता सर सैलरी इज़, नीचे के लेवल पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है पीएन के लेवल पे थोड़ी सी सैलरी कम हो। सर एक बात मैं बोलूँगा, अगर मान लीजिए सबका ग्रीड खत्म हो गया, तो पॉलिटिक्स में जो आएंगे वो अपना घर कैसे चलाएंगे? इफ देयर सैलरी इज नॉट सफिशिएंट। नो आई एग्री, अगर तो सैलरी सफिशिएंट नहीं है, पर मेरा अपना मानना है सर सैलरी सफिशिएंट है सर। मतलब एक भाई एक इनको अगर आप कॉस्ट टू द कंपनी किसी भी मंत्री की थ्योरेटिकल बेसिस पे आप एक बारी कैलकुलेट करके देखना, उसके सारे पर्क्स वगैरह मिला के, तो कॉस्ट टू द कंपनी कितनी आती है सर? मुझे नहीं लगता 1-1.5-2 करोड़ से कम आएगी सर। दूसरा, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी क्रिएट जॉब्स? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। मुझे लगता है सर वी हैव टू इम्प्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। सरकार जॉब्स नहीं दे सकती, सरकार के पास नौकरियां हैं ही नहीं। अब धीरे धीरे तो सरकार में नौकरियां कम ही होंगी एज वी प्रोसीड, जैसे जैसे गवर्नेंस श्रिंक होएगी सरकार में नौकरियां कम होंगी। सो द ओनली वे इज़ टू एनकरेज बिजनेस, ओनली वे इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन द कंट्री कि बिज़नेस शुरू करना भी बहुत आसान होना चाहिए और बिज़नेस करना भी बहुत आसान होना चाहिए, और बिज़नेस को सरकार एनकरेज करे। अगर वो पॉलिसीज़ हम लेके आएंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। आज डिग्री पे डिग्री लेते हैं लोग, बीएससी ले ली, बीए ले ली, बीए ऑनर्स कर ली, ये ऑनर्स कर ली, वो ऑनर्स कर ली, और उसके बाद फिर नौकरियां ढूंढते हैं। देयर इज़ नो रीज़न वाई वी कांट स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स इन द कॉलेजेस itself, where they are given some small investment. If they have ideas, let's encourage our youth to implement their own ideas in incubation centers in the colleges. And they should, when they pass out from the colleges, they should be given skills to be able to start their own business rather than looking for jobs. The youth of our country should become job creators rather than job seekers. वो education system हम लोगों को create करना पड़ेगा, मिलके create करना पड़ेगा, where in these last 1.5 months some people did come to me with ideas on that. Pollution, I completely agree sir, दिल्ली में pollution का बहुत बुरा हाल है, और मैं ये नहीं कहता, मेरे पास कोई बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ नहीं हैं, एंड अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं तो बताइएगा। लेकिन एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसके 2 बड़े बड़े कारण हैं। एक दिल्ली जल बोर्ड कारण है कि वो ठीक से प्योरीफाई नहीं करता, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और एक यमुना बहुत बड़ा कारण है सर। यमुना को हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। यमुना को जानबूझ के करप्शन, पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए सर यमुना पे, उतनों में तो एक नई यमुना बन जाती मुझे लगता है, जितने करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए। तो एट द एंड ऑफ इट सब चीज़ों के नीचे भ्रष्टाचार ही नज़र आता है। डिसेंट्रलाइजेशन की आपने बात की सर, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण, थोड़ा सा आप डिसेंट्रलाइजेशन को आपने पंचायत से कंफ्यूज कर लिया। पंचायत इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पंचायत में सरपंच के पास पावर है, लोगों के पास पावर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हर महीने लोग मिलेंगे, लोग डिसाइड करेंगे कि मेरे इलाके के अंदर सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, और सरपंच को लोगों की बात माननी पड़ेगी। जैसे अब मैं देखता हूँ, मैं आपको छोटा सा उदाहरण, मैं एक एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, 10 बार जा लिए मेयर के पास, मेयर कहता है पैसा नहीं है। पैसा तो है, हम देखते हैं एक ही फुटपाथ तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं, पैसा तो है। हम कहते हैं जी वो स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, उसका बल्ब ठीक करा दो, बल्ब नहीं ठीक कराएंगे, सारा पोल बदल देंगे, वो पूरा का पूरा पोल बदल देंगे, सारी स्ट्रीट लाइट्स बदल देंगे वो लोग।
सर पैसा तो है, अगर आपके एरिया को, आपके इलाके को हम 2 करोड़ रुपए दे दें और हम कहें भाई अब इस 2 करोड़ रुपए में आपको अपने एरिया को चमकाना है, तो आपकी हर महीने मीटिंग होगी, यू विल पास रेजोल्यूशंस एंड यू विल से भाई वो वाली स्ट्रीट लाइट ठीक होनी चाहिए, वो वाला पार्क ठीक, यू विल पास रेजोल्यूशंस एंड द जूनियर इंजीनियर विल हैव टू इम्प्लीमेंट दोज रेजोल्यूशंस. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज अ मॉडल. We are to some extent moving away from representative democracy to direct democracy. Direct democracy is not possible in absolutism. आपके एरिया का, आपकी बिजली, आपका पानी, आपका पार्क, आपकी स्ट्रीट लाइट, आपकी सड़क, आपकी सब स्कूल, आपका अस्पताल, उसमें पॉसिबल है. लेकिन व्हेन वी कम टू द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिफेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें तो सरकार को ही करना पड़ेगा. पर लोकल लेवल पे इट इज़ पॉसिबल. और इसके कई मॉडल्स मैंने देखे हैं. आप यूएसए को उठा लीजिए. यूएसए में दे हैव एवरी टाउन, एवरी काउंटी, एवरी म्यूनिसिपैलिटी, दे हैव टाउन हॉल मीटिंग्स एवरी मंथ. आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, यू विल फाइंड दैट. टाउन हॉल मीटिंग्स में जनता इकट्ठी होती है, जनता रेजोल्यूशन पास करती है विच आर बाइंडिंग ऑन द मेयर. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब है 5 साल में एक बार वोट डालो और उसके बाद घर जाके बैठ जाओ. उसके बाद 5 साल उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहो, हाथ जोड़ते रहो. उनके घर जाओ उनसे मिलने के लिए तो कुत्ते छोड़ देते हैं. दिस इज नॉट डेमोक्रेसी सर. Mr. Arvind Kejriwal, thank you very much for this interaction. This has been the first interaction with CII. We hope that this becomes, And I look forward to many more interactions. Yes, we look When forward. I met the industry people in Delhi, there was a representative from CII also who suggested that, आप थे? हाँ, who suggested that कि हम आपको यमुना के उसमें भी मदद कर सकते हैं और 1-2 और अच्छे आइडियाज़ दिए थे. I look forward to that constant exchange of ideas. Thank you. Please join me in applauding Mr. Arvind Kejriwal.